So today we are on the last shloka of this chapter, first canto. We are studying first canto, chapter 3. Krishna is the source of all incarnation, text number 44. So let us begin. Tatra kirtayato vipra viprase bhuri tejasa aham chadyagamam tatra nivistastad anugrahat soham vashaviyaste shyami yathadhitam yathamati तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रसे भूरि तेजसा अहं चद्यागमं तत्र निवस्तस्तत् अनुग्रहात् सोऽहं वः श्रविष्यामि यथाधीतं यथामति तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रसे भूरि तेजसा अहं चद्यागमं तत्र निविस्तस्तत् अनुग्रहात् सोऽहं वा श्रवयिष्यामि तथाधीतं यथामति. Akshay, read shloka. कीर्तयतो विप्ररासैर्भूरि तेजसा अहं कद्यकमं तत्र निविशत् तद् अनुग्रहात् सोऽहं वः स्रवस्रिष्यामि यथादितं यथामति. Next, Mataji. Mataji, read the shloka. Anyone can start. तत्र कीर्तयतो विप्रसेर भूरि तेजस अहं चद्यगमन् तत्र निविस्तस्तद् अनुग्रहात् सोऽहं वः सर्वैष्यामि यत्र धित्रं यथामति. Next. तत्र क्रियते तो विप्राशर्भूरि तेजसा अहं छन्द्यगमनं तत्र निवस्तता तत् अनुग्रहतः सोऽहं वः सर्वयाशियमि यथा अधीतं यथामति. Next. तत्र कीर्तयतो विप्ररासैर्भूरि तेजसा अहं चन्द्यगमं तत्र निविष्टस्य तद् अनुग्रहात् सोऽहं वा सर्वविष्यामि यथाधीतां यथामति. Next. Sonika, read shloka. तत्र कृत्यतो विप्रासर्भूरि तेजसा अहं चद्यगमं तत्र निवितिस्तद् अनुग्रहात् सोऽहं वः सर्वस्यामि यथाधितं यथामति. Priya Mataji, shloka पढ़ो. तत्र कीर्तयो विप्राश्री भूरि तेजसः अहं चद्यागमं तत्र निविष्टतद् अनुग्रहात् सोऽहं वै सर्वस्यामि यथाधीतं यथामति. Okay, word to word meaning. Asta, I was not saying anything. I was just saying that this is the last shloka of this chapter. So tomorrow we will be beginning with the new chapter. That's what I was saying. No, वो कॉल वाला माताजी. Call, yeah, I was saying that early morning actually I called Priya Mataji at 3. So I made her call again at 3:30. So I thought I called you. So I forgot. Then I think I didn't call you. Then you called me around 4:15. That Yes. time I was actually I need to go for the आरती that time. 4 बजे कॉल किया था मैंने. हाँ, तो उस टाइम मुझे शायद आरती के लिए जाना था. So that was there. So I'm really sorry. Actually, I messed up because I think I called her twice. I didn't call you at 3:30. So that was it. Tomorrow I'll make sure to call you at 3:30. Okay. Okay, माताजी. Word to word meaning. Tatra, there, kirtayataha, while reciting, vipraha, O Brahmana. Vipra Rishihe, from the great Brahmana Rishi, Bhuri, greatly. Tejasaha, powerful. Aham, I, Cha, also. Adhyagamam, could understand. Tatra, in that meeting. Nivishitaha, being perfectly attentive. Tat, anugrahat, by his mercy. Saha, that very thing. Aham, I. Sorry. Yeah. Vaha,
on to you. Sravashyami, shall let you hear. Yatha adhitam yatha mati, as far as my realization. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. All learned Brahmanas, when Sukadeva Goswami recited Bhagavatam there in the presence of Emperor Parikshit, I heard him with rapt attention. And thus, by his mercy, I learned the Bhagavatam from that great and powerful sage. Now I shall try to make you hear the very same thing as I learned it from him and as I have realized it. Now, who is saying this thing? ये कौन बोल रहा है? This is spoken by Suta Goswami. Who is saying this thing? Suta Goswami. जो नैमिषारण्य में जो sages इकट्ठा हुए हैं, they all inquired from Suta Goswami 6 questions, and then they asked him to explain about the incarnations of Lord. So in this chapter, we studied about the various incarnation of Lord. Now what he is saying here, कि जब सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाया था, then I heard Bhagavatam, how he heard Bhagavatam with rapt attention, कि मैंने उस समय भागवतम पूरा ध्यान पूर्वक सुना था, and by his mercy I learned the Bhagavatam from that great and powerful sage. और उनकी कृपा से मैं ये भागवतम को सीख पाया हूँ. And now I shall try to make you hear the very same thing as I learned it from him and as I have realized it. प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की अगर आपने लीलामृता पढ़ी हो तो प्रभुपाद ने उसमें कहा था, the one who is a good listener is a good speaker. जो एक अच्छा श्रोता होता है वो अच्छा प्रवक्ता भी बनता है. तो अगर आप श्रवण अच्छे से करते हैं तो आप उसको बोल भी अच्छे से सकते हैं. यदि आपने अच्छे से सुना नहीं है तो आप अच्छे से बोल भी नहीं सकते हो. तो यहाँ पे क्या बोला है सूत गोस्वामी ने कि उन्होंने ये जो कन्वर्सेशन था, ये भागवतम रिसाइटेशन जब था, सुखदेव गोस्वामी जी ने सुनाया था, तब उन्होंने इसको पूरा ध्यान पूर्वक सुना था. तभी वो कह रहे हैं कि नाउ आई विल ट्राई टू मेक यू हियर द वेरी सेम थिंग. मैं आपको वही चीज सेम सुनाऊंगा जो मैंने सुना है. दैट व्हाट आई हैव लर्न एंड आई हैव realized it by their mercy. So he says, when we pay attention to the Lord's word, then the what we call it, जब हम एक अटेंशन पे करते हैं भगवान के वचनों को या उनको, तो उनकी कृपा हम पे आती है. कृपा मतलब कि we are able to implement them also in our life. And the moreover the thing is, तभी कहा जाता है ना, अभी पिछले श्लोक में भी हमने पढ़ा कि गुरु परंपरा को महत्व दिया गया है. ठीक है, जैसे व्यास देव जी से सुखदेव गोस्वामी, नारद ने व्यास देव जी को ज्ञान मतलब दिया, तो उसके बाद में व्यास देव जी सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने भागवतम का ज्ञान दिया, और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को सुनाया, जिसको सूत गोस्वामी जी ने भी सुना. और अभी सूत गोस्वामी वाज एड्रेसिंग थाउजेंड्स ऑफ सेजेस इन नैमिषारण्य. नैमिषारण्य में 1000 सेजेस हैं. वहां पे देयर आर मेनी नंबर ऑफ 1000 सेजेस who are assembled for 1000 years to discuss this Bhagavatam. ठीक है, to hear about this Bhagavatam. So they are hearing. So he is in the disciplic succession. So he is able to give as it is the knowledge. इसलिए हमारी भगवत गीता का नाम as it is है. As it is मतलब यथारूप. तो जब गुरु परंपरा में चीजें सही से आती हैं तो वो सही से आगे जाती भी हैं. So and moreover more and more mercy is there. ठीक है, कृपा बहुत ज्यादा रहती है. As you all know, the telescope. How many of you know about telescope? किसी ने देखा है टेलीस्कोप? कितना ने देखा है? मैंने नहीं देखा है, मतलब प्रैक्टिकली नहीं देखा, ऐसे ओरिजिनल में नहीं देखा है, ऐसे तो पता है मुझे क्या होता है. किसी ने देखा है टेलीस्कोप? Any of you have seen telescope? Actually, you have seen? आस्था ने देखा. और सोनिका ने भी देखा है. और चलो कोई बात नहीं देखा तब भी कोई बात नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट पता है ना उसका. दूर की चीजें हम पास से देख सकते हैं. सो दैट मींस इन अ टेलीस्कोप इट्स अ पाइप, मतलब काइंड ऑफ अ पाइप जिसमें बहुत सारे ग्लासेस होते हैं, मतलब लेंसेज होते हैं, और वो क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं हमारे विजन को. मींस वी आर एबल, इसलिए तो हमें दूर की चीजें क्या पास में दिखती हैं. तो इट मैग्नीफाइज, जैसे जैसे जितने लेंसेज उसमें होते हैं तो उतनी दूर की चीजें वो मैग्नीफाई करते हैं हमारे विजन को. वी आर एबल टू सी देम. तो अब जैसे चांद इतना दूर होता है, कभी ग्रहण लगता है तो पीपल यूज टू सी दैट, टेलीस्कोप के थ्रू देखते हैं. तो मतलब दूर की चीजें बहुत करीब से दिखती हैं हमें. मींस इट मैग्नीफाई. सो दिस इज द अगेन द पावर ऑफ बीइंग इन परंपरा. परंपरा में क्या है, जो कृपा है वो मैग्नीफाई होती है. जब आप एक परमाणिक परंपरा से जुड़ जाते हैं, और एक परंपरा से जुड़ने का पहला जो कदम है वो है दीक्षा लेना. ठीक है, वो भी एक बोनाफाइड संप्रदाय में. अब जैसे हमारा जो वैष्णव संप्रदाय है, अभी जो हम इस्कॉन में है,
दैट इज अ गौड़िया वैष्णव ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। हमारा जो संप्रदाय वो ब्रह्मा जी से है, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय। और जब हम दीक्षा ले लेते हैं तो हम एक रजिस्टर्ड हो जाते हैं इस परंपरा में, और ये हमारे गुरु से आगे जितने भी उनके गुरु हैं जो कृष्णा तक, वो सारी जो मर्जी है वो मैग्नीफाई होके हमारे गुरु के थ्रू हम तक आती है। सो व्हेन वी पे अटेंशन टू आवर गुरु, फॉलोज हिज इंस्ट्रक्शन, तो वो जो कृपा है वो मैग्नीफाई होके हम तक आ रही होती है। अंडरस्टैंडिंग? अब कृष्णा बहुत दूर है ना, यू कैन टेक कृष्णा ऑन द रियर एंड मतलब द एंड दैट इज जो छोटा एंड होता है, टेलीस्कोप छोटे से बड़ा करके ग्लास आता है उसका, जो छोटा है वो आप कृष्णा को ले सकते हो, दूर है ना कृष्णा बहुत, ठीक है। और वहां से कृपा हमारे गुरुजन हमें दिखते हैं ना, सो आप वहां से ऐसे में टेलीस्कोप का विजन ले सकते हैं। सो द परंपरा, द मर्सी मैग्निफाइज, यू नो, और उस मैग्निफिकेशन से वी आर एबल टू सी कृष्णा। और यू कैन से कि गुरु की कृपा से हम कृष्णा को भी इतने दूर हैं हम परसीव कर पाते, इतने पास में। सो द पॉइंट इज when you are in the bona fide parampara, then mercy magnifies and the knowledge comes to you, but we need to have we need to pay the rapt attention to the what they say, ठीक है। तो अगर आपने सुना होगा, कल को आप ही अपने गुरु के वचनों को आगे बहुत ध्यान पूर्वक मतलब अच्छे से आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So this is what it means here, what Suta Goswami is emphasizing here, that he paid the rapt attention. One who is a good listener is a good speaker also. So make sure अगर आप कल को प्रचारक बनना चाहते हैं या इसी भागवत का प्रचार करना चाहते हैं तो आप इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। जिनसे भी आप श्रवण करते हैं गुरु महाराज से या हमारे स्कूल में जितने भी प्रवक्ता हैं, प्रचारक हैं, जिनसे भी आप सुनते हैं, श्रवण करते हैं, ध्यान पूर्वक कीजिए ताकि आप उसको बता सके। सो उसका एक तरीका ये भी होता है टू शेयर द रियलाइजेशन, ठीक है, उसको शेयर भी करना होता है। हमारी रियलाइजेशन से बहुत सारी हैं, मतलब जो हम सुनते हैं हमारे खुद का भी रियलाइजेशन आता है, तो वी शुड शेयर with other people to have the more understanding of the subject matter. Okay, I will go to the purport. One can certainly see directly the presence of Lord Krishna in the pages of Bhagavatam if one has heard it from a self-realized great soul like Sukadeva Goswami, ठीक है। तो कोई भी भगवान की प्रेजेंस, जैसे हमने पढ़ा कि भागवतम भगवान से भिन्न नहीं है, इट्स सेम, भागवतम और कृष्णा इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। तो यदि हम उसको एक बोनाफाइड एक पर्सन भागवतम से सुनते हैं तो हम डायरेक्टली उस भगवत गीता भागवतम को एज ए कृष्ण रूप में देख पाते हैं, समझ पाते हैं। One cannot, however, learn Bhagavatam from a bogus hired reciter, though the aim of life is to earn some money out of such a recitation and employ the earning in sex indulgence. तो जो लोग तो ये होते हैं जैसे प्रोफेशनल रिसाइटर्स होते हैं, ठीक है, भागवतम सप्ताह बिठाते हैं तो बहुत दे टेक सो मच ऑफ लक्ष्मी। हमें ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए। वो तो उसी प्रकार हो जाएगा जैसे एक दूध को सर्प ने जीभा लगाई हो तो वो जहरीला हो जाता है ना। तो दैट द सेम थिंग, इफ वी हर्ड not from a devotee, so it's like the knowledge is touched by a snake, that is poisonous. तो poisonous हमारे लिए सही नहीं है। उनका क्या पर्पस है, भागवतम तो पढ़ते हैं मगर इंद्र तृप्ति में लगे हैं, सेक्स इंडल्जेंस में है, मनी मेकिंग बिजनेस में है। So this is not proper to hear from them. We are not going to get anything from them. You know, one who is pure, from there only we can have something. So it says no one can learn Srimad Bhagavatam who is associated with person engaged in sex life. ठीक है, को no one can learn Srimad Bhagavatam. आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से भागवतम नहीं सीख सकते जो व्यक्ति शुद्ध नहीं है। शुद्ध मीन्स हु इज इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, ठीक है, बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड मुची। मुची मीन्स अनक्लीन, ठीक है, सबसे ज्यादा अनक्लीन स्टेज में इसको माना जाता है। जैसे हमारे जो धर्म के 4 पिलर हैं उसमें क्लीनलीनेस वाला जो प्रिंसिपल है वो किस रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करने से आता है, किसको पता है? यस, आइडिया तो हो ही गया होगा वैसे। क्लीनलीनेस वाला जो धर्म पिलर है, हमारा धर्म का पिलर है, वो कौन सा रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने से आता है? कौन बताएगा? No illicit sex. हाँ, No illicit sex. yes, no illicit sex. So cleanliness is maintained when one is not into the illicit relation, ठीक है, when one is not into illicit relation, that is the 4th principle, ठीक है। So when one is not, तो तभी तो हम लोग 4 नियम पालन करते हैं ना, because it's considered very muchi, unclean stage, ठीक है, इसको काफी unclean माना जाता है। So and moreover the sex indulgence it destroys one बुद्धि, one का जो इंटेलिजेंस है उसको भी कम कर देता है। तो one cannot, because that person is भोगी, वो पर्सन क्या है, भोगी है, आप उससे नहीं सीख सकते। That is the secret of learning Bhagavatam. Nor one can learn Bhagavatam from one who interprets the text by his mundane scholarship. ना तो आप भागवतम ऐसे व्यक्ति से सीखिए जो कि अपनी जैसे कोई पीएचडी स्कॉलर है या संस्कृत में स्कॉलर है,
तो भागवतम को अपने हिसाब से श्लोका को समझा दे आपको, तो वो भी गलत है, हमें उनसे भी नहीं सीखना, ठीक है। हमें उनसे भी भागवतम नहीं सीखना है, हम उनसे सीखना है जो भगवान के भक्त हैं और उसको एज इट इज प्रेजेंट करें गुरु परंपरा में। One has to learn Bhagavatam from the representative of Sukadeva Goswami and no one else, if one at all wants to see Lord Shri Krishna in the pages. तो अगर आप भागवतम के पेजेस में भगवान कृष्ण को स्वयं उनकी प्रेजेंस देखना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से भागवतम श्रवण कीजिए, सुनिए, जो सुखदेव गोस्वामी के रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो that is the process and there is no alternative. Suta Goswami is a bona fide representative of Sukadeva Goswami because he wants to present the message which he received from the great learned Brahmana. Sukadeva Goswami presented Bhagavatam as he heard it from his great father, and so also Suta Goswami is presenting Bhagavatam as he had heard it from Sukadeva Goswami. Simply hearing is not all. One must realize the text with proper attention. कहते हैं कि वही रियलाइजेशन कब आता है, जब उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं. द एप्लीकेशन ऑफ हियरिंग, सॉरी, application is the application, what is it? Application is the I forgot the quote. Application is the perfection of hearing. Yes, application is the perfection of hearing. कि मतलब जो आपने श्रवण किया उसको आप अप्लाई कर रहे हो लाइफ में, तो वो आपके सुनने का परफेक्शन है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे आप पढ़ रहे हैं भागवतम, तो अगर आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे, so then only it will work. I remember one point, अभी आई थिंक लास्ट वीक की बात है, 2-2.5 हफ्तों की मतलब पुरानी बात है. I was at Priya Mataji's house and that day what had happened, I was chanting my rounds. So after भागवतम क्लास के बाद की ही बात है, नहीं भागवतम क्लास के थोड़ी सी देर की पहले की बात है, मॉर्निंग आवर्स की बात है. I was chanting my rounds and Mataji just came up to just see me कि how I was, because Priya Mataji घर पे नहीं थी, तो आए मुझे ऊपर देखने के लिए. And see, she heard in the lecture, उन्होंने वो लेक्चर में सुना था कि जब भी when the devotees are around, so we should not disturb, we should try to learn something from them, or we should talk about Krishna. तो ऐसा उन्होंने श्रवण किया था. And she came to my room and वो ऊपर आए, तो मैं जब कर रही थी उस समय, तो उन्होंने पूछा कि are you all fine? I said fine. तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा मैं जाती हूँ, नहीं तो आपके जप रह जाएंगे. मैंने सुबह सुबह क्लास में सुना था कि whenever one is engaged in devotional activity, we should not disturb, and when one is free, one should discuss about Krishna. So one should not indulge in prajalpa. And I was very amazed and happy to hear that thing that she was implementing also. So this is how we learn from other people also. So कि उन्होंने ऐसा सुना था कि जब भी मतलब devotees हैं, if they are engaged in devotional activity, we should not disturb, let them do, and if they are free, then we should discuss Krishna Katha. And I remember when we were free at that day and we were studying the Bhagavad Gita together, and we discussed about the points we heard in the lecture and whatever she heard. So in the morning, because वो morning classes attend करते हैं माता जी, महाराज की क्लास सुनते हैं, तो वो बता रहे थे मुझे. So this is how we can learn. So that's quite very nice. I really impressed by the thing, and that's a learning for us also कि हमें ऐसा सीखना चाहिए कि whatever we hear उसको implement भी करना. उन्होंने मैं सुबह सुना था क्लास में and she implemented also. So this is the what we call application is the perfection of hearing. So that's what it is. ठीक है. तो यही realization कब आता है हमें? Then when I saw Mataji implementing the same thing, the realization came to me. उनको भी आया होगा, पर मुझे भी आया कि no, we should that, yeah, that is the proper way. So realization comes when we put it into practice. ठीक है, ऐसे नहीं आता है. So the word nivishta means that Suta Goswami drank the juice of Bhagavatam through his ears. So we have to drank the juice through the ears. अब बोलोगे माता जी पिया तो मुंह से जाता है, मगर उसको कहाँ से, कानों से पिया जा रहा है. मतलब you're drinking through your ears. I remember one of the quote of my Guru Maharaj when he saw Prabhupada for the first time. When he had the जब उन्होंने प्रपात को देखा था, तो he made a one statement. He says, seeing Prabhupada means drinking through the eyes. Means प्रपात को देखना मतलब उनको आंखों के थ्रू पीना. So इस तरह से मुझे उस समय समझ नहीं आया था कि आंखों के थ्रू क्या पीना. पीना मतलब कि to adopt the essence of the acharya, कि आचार्य की जो टीचिंग्स है उसको अडॉप्ट करना भूले. So that is what the drinking means. So here also the drinking the juice of Bhagavatam मतलब कि उसको पूर्णता अपने जीवन में उतारना. ठीक है, पूर्णता उसको इतना श्रवण कर लेना. पीना क्या होता है, पेट के अंदर जाता है ना, तो you're relishing in your body, it goes to your body and nourish you. So similarly drinking Bhagavatam means it nourish your soul. It's the food for the soul. It nourish your soul, nourish your chetana, that you get purified. So this is what drinking the juice of Bhagavatam.
So that is the real process of receiving Bhagavatam. और भागवतम ऐसा जूस है, I'll tell you, कितने लोगों को आम खाना पसंद है? How many of you love mangoes? खैर अभी समर सीजन आया नहीं है, but how many of you love mangoes? I love mangoes. Yes, who else? और किसको पसंद है mangoes? Okay, प्रिया माता जी likes, आस्था likes. बाकी किसी को आम पसंद नहीं है? आम आदमी को आम पसंद होना चाहिए. Almost everyone likes mangoes, हाँ? Okay. अब जब मैंगो है तो जब आप बड़ा जूसी सा मैंगो होता है, जब बीच में गुठली आ जाए थोड़ा मन करता है काश गुठली नहीं होता, सिर्फ पल्प ही होता, कितना मजा आता है ना? तो अब ये जो भागवतम है, ये ऐसा जूस है, ये ऐसा आम है जिसमें ना तो सीड है और ना तो छिलका है, सिर्फ पल्प है. So you just relish it. So this is Bhagavatam. So you can just have it. It's so juicy and so relishing. So that's what the Bhagavatam. So that is the real process of receiving Bhagavatam through the in a bona fide method. One should hear with rapt attention from the real person. This is a very nice point. One should hear with rapt attention from the real person, and then he can at once realize the presence of Lord Krishna in every page. So जब आप एक rapt attention से भागवतम सुनते हैं भक्तों से, so you can relish and can observe, can feel Krishna in every page of Bhagavatam. The secret of knowing Bhagavatam is mentioned here. No one can give rapt attention who is not pure in mind. कि जो व्यक्ति कोई भी rapt attention नहीं पे कर सकता जो कि शुद्ध नहीं है मन में. तो अगर आप शुद्ध नहीं भी हो तो तब भी प्रयास कीजिए, मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा. ठीक है? No one can be pure in mind who is not pure in action. और जो एक्शन में प्योर नहीं हो मन में भी शुद्ध नहीं हो सकता. समझ में आ रहा है? One who cannot pay attention, whose mind is not pure. और किसका मन शुद्ध नहीं होता? जिसके एक्शन शुद्ध नहीं होते. तो इसलिए हमको 4 नियम दिए जाते हैं 16 माला करने से, जिसमें हमारे एक्शन जो कार्य हैं, इसलिए बोले जाते हैं डिवोशनल सर्विस करनी है. तो when we engage in devotional service, our action get pure. ठीक है? And by that our mind get pure. If the mind is pure, we are able to pay attention. ठीक है? But somehow or other, if someone hears with rapt attention from the right person at the very beginning, one can assuredly see Lord Krishna in the persons in the pages of Bhagavatam. जैसे मैंने कथा सुनाई थी कि the person was able to see the Krishna in front, you know, when he hear the shlokas, because he hear it with rapt attention from the person Bhagavatam. So similarly, we should pay attention even if you're not, but try, you were able to relish the Bhagavatam. ठीक है? So thus जी ends आपने the बीच Bhakti में Vedanta लाइन purport छोड़ of दी the क्या? first canto, third chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Krishna is the source of all incarnation. So we finished up this chapter. I will take up हरे कृष्णा माता जी. 1 second, Asta. Yes, Asta, now you can go ahead. माता जी एक बीच की लाइन छूट गई क्या? बीच की लाइन छूट गई है. Which line I missed out? ये no one can be pure in action who is not pure in eating, sleeping, fearing Oh, and sorry. meeting. Yes, yes. It says, no one can be pure in action who is not pure. This is very important line. So you all can just make it out. इसको mark करके रखिए. क्या बोला है? No one can give rapt attention who is not pure in mind. Pure in mind क्यों नहीं है? क्योंकि action pure नहीं है. And no one, किसी के action pure नहीं हो सकते क्योंकि उसकी eating, sleeping, fearing and mating, मतलब this is not pure. So जो हमारे 4 नियम हम पालन करते हैं, उनसे ये चारों चीजें pure हो जाती है. और उनसे हमारे action pure होते हैं और मन भी शुद्धि होती है क्योंकि we are chanting. And by that we can pay rapt attention. So this is the process. So we need to purify, follow the principles, chant holy names, your action and mind will be pure and you are able to pay rapt attention. Understanding? So try to follow up these things, you can be pure, you will be pure. Okay, so we will be finishing. Thank you, Asta, for making it clear. I think I just skipped it out. Thank you so much. Yeah. So now I will take up any questions, comments. We are having some time. We having 13 minutes. So किसी का कोई realization भी है तो I would like to hear. Yes, please go ahead. Actually, you wanted to say, but I think your audio mic is not that thick that I'm able to hear you. So if you can make it out. If you're saying something, so just be a little loud. No, Mataji, I by fault left the mic on. Okay, okay, okay. So you have anything to speak up from today's discussion? No, I mean Prabhupada said the very things that ideally one should follow. So yeah, not that ideally, was one something should follow. Idol is something that you keep the idols, but no, it's not an idol. We have to follow. Understanding? We have to follow the 4 Yes, sir. principles. We have to follow. We have to chant.
then we will be pure, and we have to pay attention to the words of Bhagavatam. Then only we are able to perceive Krishna in the every page of Bhagavatam. Understanding? Ideally is something a very difficult word, but it's not ideal. We have to. Okay? To perceive Krishna, to attain perfection, we have to. Not ideally. We have to. Okay? Yes. Okay. Anyone having any questions or comments or any realizations? So please go ahead. Yes, Priya Mataji. माता जी जब परीक्षित महाराज को भागवत सुनाई ना थोड़ा सुखदेव लाउडली गोस्वामी ने, बोलोगे तो माताजी? मेरे को ना थोड़ा ये स्पीकर में हेडफोन नहीं है मेरे पास. हरे कृष्णा. हाँ, हरे कृष्ण. हाँ, मैं बोल रही हूँ कि जब सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम सुनाई महाराज परीक्षित को, तो वहां पे सुत गोस्वामी ने भी सुनी थी भागवतम, हाँ जी. है ना? हाँ जी. तो फिर वो मतलब उन्होंने ही क्यों आगे वो स्प्रेड किया? बाकी लोग भी तो वहां से बहुत सारे सेजिस आए हुए थे ना, तो उसे सुत गोस्वामी ने ही क्यों मतलब वो अच्छे से सुन पाए या फिर आगे वो प्रचार कर पाए, बाकी लोगों ने नहीं किया ऐसा? अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के तो इतने सन्यासी शिष्य थे, तो श्रील प्रभुपाद जी ने क्यों प्रचार किया? अच्छा. हाँ, बताइए. क्योंकि one who has paid attention, माताजी, that person can only take up the process ahead. ठीक है, ऐसी बात नहीं कि बाकियों ने नहीं सुना, मगर he was having that instinct to preach the message of Bhagavatam. अब श्रील प्रभुपाद, अब आज्ञा प्रभुपाद को दी गई थी. प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने इससे पहले अपने कई सन्यासी डिसाइपल्स भेजे थे बाहर, मगर कोई क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि कहते हैं जब तक गुरु में पूर्ण श्रद्धा ना हो, no one can do, one cannot be empowered. So he was, Srila Prabhupada paid the full attention to the Bhakti Siddhanta Thakur and had the full faith on his Guru's word. That's why he was successful. And ऐसी बात है कि बाकियों ने प्रचार नहीं किया होगा, पर सुखदेव गोस्वामी was the prominent one. Understanding? अब जैसे अगर आप गुरु परंपरा देखो हमारी भगवत गीता में, तो 32 ही गुरु बताया गया है उसमें. तो अब 32 ही हैं, तो उसमें what we say कि मतलब ये नहीं कि बीच में गुरु नहीं रहे हैं, मगर द प्रोमिनेंट वन, दोज हु वर द लीडर्स एट दैट टाइम, उनको बताया गया है. तो उस तरीके से, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग माता जी? सो इफ द सिमिलर वे कि हर एक गुरु का एक तो चांद होता ही है, डिसाइपल हु टेक्स अप द प्रोसेस अहेड एंड गो एंड प्रीच एज इट इज. ऐसी मतलब नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी शिष्य सही से नहीं कर पा रहे, बट यू कैन से ही वाज excelling in one's faith and hearing. So that's all. Understanding? Yes, माता जी, thank you. Okay. Any further questions? और किसी और का प्रश्न है? Yes. Or any realization? माता जी एक रियलाइजेशन थी. Yes, please go ahead. लाइक माता जी जैसे देखो जैन है तो ऐसे होता है ना जनरली. अभी देखो मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग आते हैं तो वो अपने अपने फिलोसफी अपने अपनी चीजें दे जाते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू वो तोड़ मरोड़ करके. बट देयर इज लाइक नो प्रूफ एंड एनीथिंग लाइक दैट. इफ यू सी शिला प्रभुपाद, एक एक लाइन शिला प्रभुपाद की पूरा शास्त्र थी. लाइक गुरुमा भक्तिचार्य स्वामी गुरुमाला जिसको से Yes. लाइक Prabhupada don't utter a single word which is not in a shastra. Yes. Like that, So मेरा रियलाइजेशन था माता जी कि जैसे हम ठीक है यदि हम फिलोसफी जस्ट सुनते हैं तो हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन जब हम एक्चुअल में प्रभुपाद के वर्ड्स को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यस नाउ लाइक एक प्रीचिंग के लिए भी ना एक एकदम कॉन्फिडेंस रेडी हो जाता है कि लाइक आज मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ. लाइक सो and what I'm speaking also that's right and according to shastras. So realization that like Prabhupada like like gave us a lot of things. Like अरे हमें वो चांस ही नहीं दिया ना कि मतलब आप कहीं से भी फॉल्ट निकाल पाओ या फिर बोल पाओ कि अरे ये कहाँ है. लोग I बोलते हैं ये remember कहाँ है. from this point of view, when I was in my college time, when I got introduced to Srila Prabhupada's books, so भगवत गीता तो मैंने पढ़ना शुरू किया था, but वो हिंदी में थी तो मुझे इतना नहीं समझ में आती थी. तो then I got some small books of Srila Prabhupada and मैंने वो पढ़ना शुरू किया था. So because college time में मेरे पास time भी होता था, तो I started up reading Prabhupada's books, the small ones, not the Bhagavatam and all. Bhagavatam मैंने काफी late start किया. I regret about it, but it's okay.
मैंने प्रपात की छोटी किताबें जब पढ़ना शुरू की थी, तो मैंने एक्चुअली उससे, आई एम नॉट अ बुक रीडर, आई एम जनरली आई एम नॉट अ बुक रीडर, मैं सुन सकती हूँ बट आई एम नॉट अ गुड रीडर, बट दैट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग प्रपात बुक्स, उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किताबें ना पढ़ी हूँ, पढ़ी थी ऐसे फिलोसफी की तो नहीं, मगर सम बुक्स आई हैव रेड. व्हेन आई रेड प्रपात's बुक्स, I can be, because I was a person who argue about the things. If I don't understood the things, I will argue. But when I read Prabhupada's books, I was like, no, this is it. हाँ सही है, बिल्कुल सही है. It's a fact. Because Prabhupada has quoted from the Shastra, no one can argue about it. Because it was exactly as it is mentioned. So no one can say कि Prabhupada ने खुद से बता दिया, नहीं. So that was my conviction when I read Prabhupada's books. I was like, oh, हाँ ऐसा ही है, ये सच है. Like there was a conversation about the men and women equality. कि women का position क्या होना चाहिए, like that way. So I was like, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब how one can say, because we are in the society where women have that, now the feminism is there, that women has to be very independent, like that, the things that we are taught in the society. But when I read Prabhupada's book that women should be subordinate and be in a subordinate position, like that, I was fully convinced. Otherwise, I was like, because I myself was very passionate about like women empowerment and all those things. But when I read Prabhupada books, I was totally convinced, no, what Prabhupada has said is perfectly same, is right. So this is the Prabhupada power, because it was from the Shastra and it was from the pure devotee as it is coming. So that the conviction was there. So this is that paper says like तभी कहा जाता है ना गुरु साधु शास्त्र. तो इसलिए आप अगर किसी से सुनते भी हैं तो मेक श्योर इट इज इन द शास्त्र. आप जैसे स्कूल की तो नॉर्मल बात है, अगर आप स्कूल में भी कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो अगर टीचर आपसे कुछ बाहर से बता देता है तो आप बोलते हैं मैम ये किताब में तो है नहीं, आप कैसे बता रहे हैं. सो वी कैन चेक, यू नो. तो इसलिए प्रपात को सुनिए आप, और अगर कोई प्रवक्ता आप किसी के प्रचारक से सुनते भी हैं तो मेक श्योर दैट ही इज राइट. उसको कैसे आप श्योर करोगे? if you have studied the Prabhupada's book thoroughly, then you can understand कि सामने वाला कुछ गलत नहीं बता रहा. ठीक है. So that's why it's emphasized that we should study Prabhupada's books. तो सारी प्रभात की किताबें पढ़िए आप, चाहे छोटी किताबें पढ़ोगे तो प्रीचिंग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है. Obviously Bhagavatam and Bhagavad Gita, the books are there, we should study regularly. But even in the free time, do read Prabhupada's small books also. So प्रभात की जितनी भी किताबें, हमें सारी किताबें पढ़नी है, तो make sure to study Prabhupada books every day. ठीक है, चाहे आधा घंटा ही पढ़िए मगर पढ़िए जरूर. तो आधा घंटा तो आप निकालिए पढ़ने के लिए. So do make it out. Make your habit of reading Prabhupada's books. So that's there. Thank you so much, Asta, for sharing it. It's very nice. It was my conviction also when I studied Prabhupada's books. So Guru Sadhu Shastra. So like that. Yes. Anyone else having any questions or comments? और किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बोलना चाहे? Yes. We are having एक और चीज माता जी जो मैंने मतलब एक और चीज मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है जो पूजा माता जी, गो अहेड. ओके यस. हाँ जी माता जी, मेरे को ना एक्चुअली एक कंफ्यूजन रहती है हाँ जी. कि हम लोग लाइक द्वापर युग, सतयुग और त्रेता युग सब कुछ पार करके आए हैं या फिर हम कलयुग में पैदा हुए? नहीं मतलब थोड़ा युग होने के बाद भी मेरे को खुद नहीं पता मैं कहाँ थी पहले, तो कहाँ अब नहीं मुझे मतलब अपना लाइक वो पास्ट तो तो होता है याद नहीं, फिर पता नहीं कहाँ था, कलयुग में ही पैदा हुई. ऐसी बात नहीं है नहीं मेरे को जी, वी हैव बीन, रहे होंगे हम भी, ऐसी बात है. बिकॉज द जीवा, अब देखो इसका तो शास्त्र भी नहीं हमें बता पा रहा कि हमारा हम लोग कब किस टाइम पे आए थे. इसका डेट और टाइम तो हमें पता ही नहीं है कि हम भौतिक जगत में कब आए थे. तो अब ये भी नहीं पता कि किस युग में कब कहाँ कैसे थे, हमें नहीं पता. सो वी डोंट नो, हमें याद ही नहीं है, पता ही नहीं. और एक टाइम भी नहीं कि व्हेन जीवा फॉल्स टू मटेरियल वर्ल्ड. So don't know. तो पता नहीं, रहे होंगे. I don't know. I can't say. I can't speculate about it. So maybe. I don't know. मेरे को ऐसा होता है कि अगर मतलब लाइक सतयुग में, द्वापर युग में भी अब मैं अगर नहीं मतलब भगवान के पास जा पाया तो कलयुग में तो गए पक्का वो भगवान धाम चले गए होंगे, है ना? हाँ वही मैं सोच रही थी कि सतयुग में तो वापस तो आ नहीं सकते. जी फिर पक्का कलयुग में होंगे हम लोग. वही मैं सोचती हूँ कि द्वापर मतलब जहाँ पे नहीं पता about इसके बारे में, तो I cannot say because we don't know what time we fall from spiritual world. तो क्योंकि इसका एग्जैक्ट टाइमिंग या डेट हम नहीं निकाल सकते, तो पता नहीं. तो I can't say about it. Maybe you can inquire from someone else or some senior. तो मुझे नहीं पता. But it's a very interesting question. I'll also inquire from someone. पर मुझे तो नहीं पता. I don't know. Yes. Anything else? I will inquire. I will also. माता जी इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग. One second, Asta, Puja Mata. माता जी इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग. रिगार्डिंग. Say something else.
नो माता जी बस। आई विल इंक्वायर माता जी, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बताऊं। यस आस्था, यू आर सेइंग समथिंग। माता जी पूजा माता जी के क्वेश्चन के ही आवाज चला गया। अरे यस प्रिया माता जी। माता जी इसके रिगार्डिंग ही मुझे याद आ रहा था कि बता रहे थे ना कि जो लोग मतलब लाउडली बोलो, कलयुग में लाउडली, जोर से बोलो, जोर से। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ मैं बोल रही हूँ कि जैसे वो बताया गया था ना कि जब पूछा था कि कलयुग में तो इतनी आयु भी कम है और बहुत ही पाप के 3 वो होंगे और एक ही धर्म का है, तो कितना मुश्किल है हाँ। भगवत धाम जाना। तो लेकिन फिर ये पॉइंट पे आया था कि मतलब ऑब्वियसली मुश्किल है, बट यहाँ पे बोनस हमें ये मिला हुआ है कि हमें बस बहुत ही कम वो करना है, बस Yes. भगवान का नाम जपना है और भगवत धाम जैसा। और ऐसा किसी भी युग में नहीं था। Yes. बाकी युग में हमें बहुत सारा कुछ फॉलो करना पड़ता था, बहुत हजारों साल तक तपस्या करनी पड़ती थी और पता नहीं बहुत सारे यज्ञ हवन बहुत सारा कुछ करना पड़ता। तो कलयुग में ये चीज सिंप्लीफाइड कर दी गई है कि बस आपको सिर्फ जप करना है और जाना है। और ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ है, मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि नाम जप करो और भगवत धाम चल जाओ। तो ये बोनस पॉइंट मिलता है कलयुग में। तो ऐसे ये पॉइंट याद आया इसलिए शेयर कर रही थी। नहीं, इट्स वेरी नाइस पॉइंट। यस, कलयुग में तो ऑब्वियसली इट्स एन इजी प्रोसेस बिकॉज लाइफ छोटा है और छोटे समय में भगवत धाम जा सकते हो, मगर बशर्ते आप इसको प्रॉपरली करिए। अगर आप फुली प्रॉपरली अच्छे से करेंगे तो यू कैन गो बैक टू गॉड इन दिस वेरी लाइफ टाइम इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। क्योंकि 20-25-30 साल तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं पढ़ाई वगैरह में, तो या जॉब में, सो इट टेक्स टाइम। So take up this process seriously. Okay, so we will be ending up if nothing else. So let's chant here and Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Granth Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, all the assembled devotees ki jai. Thank you so much. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna everyone. Hare Krishna.